ਅੱਜ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਟੋਪਿਕ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਰੇ ਸੀ। 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਐਂਡ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਨੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕੰਪਨੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਐਂਡ ਦਾ ਨੋਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਨੋਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਮਨੀਟਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁਣ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਨਲ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ, ਰੇਸ਼ੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਸਟ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ? बैलेंस शीट ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਐਸਿਡਸ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਿਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਐਂਡ ਫਿਟਿੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਬੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਟਾਈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਰੰਟ ਐਸਿਡਸ ਐਂਡ ਦਾ ਫਿਕਸ ਐਸਿਡਸ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੌਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ? ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਸ਼ੋ एक्सप्रेसेस द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वन क्वांटिटी एंड अनदर। ठीक है, जो रेशो जो 2 पर्टिकुलर चीज़ों का, ठीक है, सानू कॉम्बीनेशन दस दी है, इसनू बोले करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, और इनू इधर भी लिख सकते करंट एसेट्स ओवर द करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, अगे जो रेशो है उन्होंने भी अगे काफ़ी, ठीक है, पार्ट्स के विच वंडिया, जिवें कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हो गई, लीवरेज रेशोज़ हो गई। ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो एनालिसिस हो गया। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी जो प्रॉफिट्स नाल रिलेटेड हो, जिवें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सानू कितना रिटर्न हो रहा। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसिड्स। नैट प्रॉफिट मार्जिन नू किवें कैलकुलेट किया जाता? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओवर द नैट सेल्स। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी नू किवें कैलकुलेट किया जाता? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस द प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय द पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स। ठीक है, उमें लीवरेज रेशियोज आ जाती हैं। ठीक है, जो हेल्प करती हैं इन असैसिंग द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ अ फर्म। ठीक है, दैट इक्विटी रेशियो है। ठीक है, टोटल डेट ओवर इक्विटी। ठीक है, इक्विटी में दोनों आ जाती हैं, चाहे इक्विटी प्लस प्रेफरेंस की कॉम्बीनेशन ही क्यों ना हो। ठीक है, इंटरस्ट कवरेज रेशियो EBIT ओवर इंटरस्ट। EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरस्ट एंड टैक्स। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी एनालिसिस। ठीक है, द मेजर ऑफ द रिटर्न ऑन इक्विटी कैन बी एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर और मीन तिना के कॉम्बीनेशन के नाल रिटर्न ऑन इक्विटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। किवें कैलकुलेट कर सकते हैं? नैट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई द टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो मल्टीप्लाई द टोटल एसेट्स टू नेटवर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो शो हाउ अ कंपनीज कैश बैलेंस चेंज फ्रॉम वन ईयर टू द नैक्सट। ठीक है, मीन किवें जो कैश बैलेंस चेंज होंगे, मीन जो भी कैश फ्लो के, ठीक है, चेंजिस आती है, मीन इनफ्लो होया आउटफ्लो होया। ठीक है, उन्होंने शो करते हैं, जिवें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ किहड़ियां होंदियां जो सानू रिवेन्यू जनरेट करके दिंदियां। ठीक है, मीन जो भी असीं सेल एंड परचेज करते हैं गुड्स की डे टू डे एक्टिविटीज़ की, दिन हर रोज़ जो भी एक्टिविटीज़ होंदियां ने कि कितना असीं खरीदिया, कितना बेचिया, मीन कितना कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो होया, वो सानू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दसदी ने। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, इन्वेस्टिंग किहड़ी होंदियां? ठीक है, एक होंदा एक तरह इंक्रीज़ करदियां ने
वैल्यू जिहड़ी भी हुंदी है, ठीक है। ये च हुंदा परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स जिवें कि लैंड प्लांट, ठीक है। इन्हां दी जदों असी इन्हां नूं परचेज करते हैं, ठीक है, दोबारा तो रीसेल नहीं किए जाते। नैक्सट है कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनैंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनैंसिंग एक्टिविटीज़ किहड़ियां हुंदियां ने, जिवें कि कोई भी चेंज आ गया कैपीटल दे विच, चाहे इक्विटी कैपीटल हो चाहे प्रैफरेंस हो, ठीक है, बोरिंग्स दे विच, ठीक है, वो आ जाते हैं। नैक्सट है नॉन फाइनैंशियल इंडिकेटर्स, ठीक है। नॉन फाइनैंशियल इंडिकेटर्स किहड़े हुंदे आ साडे, इहदे विच फर्स्ट है बिजनेस ऑफ द कंपनी, ठीक है। एक कंपनी के एनालिसिस के लिए फर्स्ट देखा जाता है कि कंपनी वैल इस्टैबलिश है या नहीं है, ठीक है। कंपनी का प्रोडक्ट किवें दा है, बिजनेस इन फ्यूचर ग्रो करेगा या नहीं, ठीक है। ये भी मेनली चीज़ जो असीं एक कंपनी का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, ये देखा जाता है। टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, जो कंपनी का, ठीक है, जिस कंपनी का असीं एनालिसिस करन जा रहे हैं, ठीक है, उस कंपनी का जो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट टीम है, ठीक है, वो एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि जी एफिशिएंट एक्सपीरियंस टीम ही जो है ना, ठीक है, वो कंपनी एक्सपैंड एंड ग्रो कर सकती है, ठीक है। और जो कंपनी के इंप्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो हॉनेस्ट है या नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ देखा जाता है। नैक्सट इज़ अ प्रोडक्ट रेंज। प्रोडक्ट रेंज में प्रोडक्ट रेंज विच क्या होंदा है, ठीक है, कंपनी का कंपनी च मेन चीज़ असीं की देखते हैं, ਉਹਦਾ मेनली प्रोडक्ट, ठीक है। ਉਹਦਾ प्रोडक्ट किवें दा है, ठीक है, कंपनी का प्रोडक्ट की है, ठीक है, कंपनी की प्रोडक्ट रेंज की है, ठीक है, कितनी परसेंटेज इंडिया, कितनी परसेंट, ठीक है, इंडिया नूं कवर कर सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। और नाल दी नाल देखा जाता कि टारगेट की है, कितने परसेंट पीपल्स हैं उस प्रोडक्ट नूं यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी की है, ठीक है, मेनली ये चीज़ देखी जाती है। नैक्सट डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन की होंदा है, कहते एक कंपनी एक प्रोसैस होंदा, ठीक है, जिस विच असीं अपनी कैपीटल नूं एक तो ज़्यादा जगह विच इन्वैस्ट करदे, ठीक है, मीन रिस्क और अनसर्टेनिटी तो बचण लई, ठीक है। इसलिए असीं की कीता हुंदा, कंपनी नूं चाहीदा कि वो एक स्टेबल कंसिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी नूं, ठीक है, फॉलो करे, ठीक है, तां जो उसनूं प्रॉफिट भी होवे ते रिस्क भी घट होवे, ठीक है। नैक्सट इज़ अ फॉरेन कोलैबोरेशन, ठीक है। कोलैबोरेशन की हुंदा है, कोलैबोरेशन हुंदा कोऑपरेशन, तुसीं तालमेल ना बनाते हैं किसी नाल, सहयोग, ठीक है। मीन जदों कहंदे जब समझ लो एक मान लो कि एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, और फॉरेन ना टेक्निकली कोऑपरेट कर रही है, ठीक है, कोलैबोरेट कर रही है, ठीक है, मीन सेम बिजनेस है, मीन सेम बिजनेस दोनों चला रही हैं, ताही वो कोलैबोरेट कर सकती हैं, ठीक है। ये भी एक मेन फैक्टर है कंपनी एनालिसिस का, ठीक है, जो देखा जाता है। नैक्सट अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, ठीक है, कि प्रॉपरली अवेलेबल है साडी रॉ मटीरियल या नहीं, ठीक है, कंपनी शॉर्टेज ना होवे, ठीक है, जो भी रॉ मटीरियल है, ठीक है। ये भी क्या जो शॉर्टेज होएगी उसदे नाल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ते इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, और प्रोडक्शन रुक जाएगी, ठीक है। नैक्सट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट दे भी स्पैंड कर दिए जी कंपनी नूं ना पैसा रिसर्च मीन दोबारा तो रिसर्च करना, ठीक है, डिवेलपमेंट मीन जो प्रोडक्ट बना रही है और दोबारा तो, ठीक है, वो पैसा लगावे, ठीक है, कि उन्होंने रिसर्च भी करे, ठीक है, अच्छी तरह। और मेनली यही टारगेट होना चाहिए कि टाइम टू टाइम अपडेट करती रहे अपने प्रोडक्ट नूं, ठीक है, जो कोई न्यू प्रोडक्ट आ रहा है तो वो न्यू क्वालिटीज़ इंट्रोड्यूस करें। नैक्सट है गवर्नमेंट रेगुलेशन, ठीक है, कंपनी भी गवर्नमेंट पॉलिसी से डिपेंड करती है या नहीं करती, ठीक है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होवे, ठीक है, मेनली कोई माल प्रैक्टिसेस नूं फॉलो ना करते हुए MRTP एक्ट के अकॉर्डिंग होवे, ठीक है। नैक्सट द पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग एंड लिस्टिंग, ठीक है, कि मेरा शेयर होल्डिंग और लिस्टिंग का पैटर्न होवे, ठीक है, मीन एक ना परचेज टाइम की होना चाहिए, जो भी मीन टाइम होंदा ना परचेज का वो डिसाइडेड होना चाहिए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। असीं टेक्निकल एनालिसिस नैक्सट चैप्टर करना है और टेक्निकल एनालिसिस बारे अच्छी तरह पढ़ांगे।